راجہ رضوان عباسی صاحب اپنے بڑے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، جو تشریف لائے۔ پنڈی اسلام آباد میں کرمنل لائز میں آن دا ٹاپ نام آتا ہے آپ کا، اور ہم مشکور ہیں ان کے تشریف لائے، اور آج ان کا لیکچر ہے۔ ہم پہلے ٹائم شروع کر دیں چونکہ آج جمعہ تو مبارک بھی ہے، تو تھوڑے سے ٹائم میں انہوں نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے۔ تو تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک بناتے اس کے قبول سے محمد اللہ صاحب تشریف لائے اور تلاوت قرآن پاک کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور بکثرت تم اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی رساں ہے۔ قصیدہ برودہ شریف کے چند اشعار جمعے کے دن کی مناسبت سے پیش کرتا ہوں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هون من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزاک اللہ خیر صاحب. ایک آپ کے لیے اعلان ہے کہ کل کلاس نہیں ہو سکے گی. یہ رجسٹرار صاحب ہیں ہماری جوڈیشل کمپلیکس کے، انفارم بھی کہ عمران خان صاحب والا کل والا کیس F8 کے بجائے شاید یہاں سنا جائے. ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن ہم رسک نہیں لے رہے آپ لوگوں کو تاکہ تکلیف نہ ہو. تو کل کی کلاس جو ہے ہم کال آف کریں گے. منڈے کو 1 بجے آپ نے تشریف لانا ہے. تو ابھی میں مزید کوئی وقت ضائع کیے بغیر ریکویسٹ کروں گا طاہر محمد عثمان واسی صاحب سے، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان تشریف لائیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں. جناب رضوان بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سیکرٹری صاحب اور آئی ویلکم نیو انٹرنس. جو آج کا سبجیکٹ ہے جس پہ میں نے آپ کو لیکچر دینا ہے دیٹ از کرمنل ٹرائل. کرمنل ٹرائل میں بھی آئی ول ٹاک اباؤٹ سیشنز ٹرائل، اور اس دوران آپ کسی قسم کا بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ پٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس ٹرائل کے علاوہ آپ کو کبھی بھی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو، کرمنل سائٹ کچھ چیز پوچھنی ہو، کوئی امبیگوٹی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، تو یو آر آلویز ویلکم ٹو آسک. جدھر بھی ہم ہیں جیسے بھی ہیں تو انشاءاللہ جتنا ہمیں علم ہے وہ آپ کو ضرور ہم بتائیں گے. کرمنل جتنے بھی پروسیجر ہے اس کے 3 phases ہیں. نمبر 1 آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کوڈ آف کرمنل پروسیجر. اس کی ایکسیپشنز بھی موجود ہیں. FIA کیسز میں ڈفرینٹ پروسیجر ہے. ٹرائل کا تو سیم پروسیجر ہے لیکن کچھ کانسیپٹس ڈفرینٹ ہیں. پہلا جو فیز ہے دیٹ از کالڈ انویسٹیگیشن فیز. جو سیکنڈ فیز ہے دیٹ از کالڈ انکوائری فیز. جو تھرڈ فیز ہے دیٹ از کالڈ ٹرائل فیز. اب جو انویسٹیگیشن فیز ہے اس میں دیر آر 2 kind of offenses, one cognizable and second non-cognizable. جو cognizable offenses ہیں اس میں FIR is to be lodged immediately after conveying this information to station house officer اور انویسٹیگیشن اس کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے. نان کاگنیزیبل offenses میں پہلے میجسٹریٹ کی پرمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ cognizable offenses جو کہ زیادہ فیملیئر فینومینا ہے which you people face in your daily lives. تو cognizable offense میں whenever FIR is registered then investigating officer start investigation, and this investigation means collection of evidence either in favor or against the accused. جو بھی یعنی مقصد کیا ہے کہ جس جرم کی انفارمیشن انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو یا اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو ملی ہے
उसने उस जुर्म की तह तक पहुंचना है कि नंबर 1 क्या ये जुर्म हुआ है, नंबर 2 अगर ये जुर्म हुआ है तो क्या ऐसे ही हुआ है जैसे ये इंफॉर्मेशन कन्वे हुई, और कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस. दिस इज द प्राइमरी जॉब ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. तो उसके लिए वो स्पॉट विजिट करता है, 161 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है, बास की 164 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, साइंटिफिक एविडेंस है. तो तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करता है. फर्स्टली इंटरम रिपोर्ट, अगर उस वक्त तक 14 डेज में, विद इन 14 डेज अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती तो इंटरम रिपोर्ट होती है विच इज सबमिटेड बिफोर द कोर्ट. और उसके बाद जो है ये सिलसिला जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है तो कोई उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बार नहीं है कि इतनी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद कोई और रिपोर्ट सबमिट नहीं हो सकती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस जो कि चलता रहता है. समहाउ एक्यूज अगर इस दौरान अरेस्ट हो जाए तो उसकी रिमांड होता है उसका 167 सीआरपीसी के मुताबिक. रिमांड लफ्ज तो लॉ में मौजूद नहीं है. उसकी फिजिकल कस्टडी जो है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी. उस स्टेज पे अगर कोर्ट ये समझे कि देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो एक्यूज कैन बी डिस्चार्ज्ड by the area magistrate, by the judicial magistrate under section 63 of CRPC. अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये समझे कि एविडेंस इज डेफिशिएंट, गिरफ्तार तो हो गया लेकिन उसने कोई ऐसे शवाहिद पेश किए हैं या उसके पास इतने शवाहिद नहीं है जिससे पता चले कि ये ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस, तो बाय इन्वोकिंग सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी वो उसको रिलीज भी कर सकता है. स्टेशन हाउस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है ये वो पावर ऑफ बेल है विच इज वेस्टेड विद द पर्सन इन यूनिफॉर्म विद द पुलिस ऑफिशियल्स. उसका बॉन्ड लेके और उसको उसी वक्त रिलीज कर सकता है. अब 173 की रिपोर्ट सबमिट हो गई, पर्सन जो है वो उनका रिमांड हो गया, कोई रिकवरी होनी थी वो हो गई, पर्सन वॉज फाउंड गिल्टी, तो उसका नाम होगा कॉलम नंबर 3 में इन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी. उसके डिफरेंट कॉलम्स. अगर उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है, आ गई है, तो फिर उसका नाम जो है कॉलम नंबर 3 में प्लेस किया जाएगा. बाज एक्यूज्ड एब्सकॉन्डर हो जाते हैं, उनकी हद तक प्रोसेस इनिशिएट होता है, परपेचुअल वारंट इशू होते हैं बाय द कोर्ट, और वो जो प्रोसेस है दैट इज मेंशन इन सेक्शन 87 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. तो उसका नाम भी कॉलम नंबर 2 होता है लेकिन इन रेड इंक. जो एब्सकॉन्डर्स हैं उनका नाम रेड इंक में होगा इन कॉलम नंबर 2 ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, और जिनकी हद तक सफिशिएंट एविडेंस हो उनका नाम होगा कॉलम नंबर 3 में. अब जो भी रिपोर्ट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सीआरपीसी, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं 173 की, चाहे वो सेशन ट्रायल हो, मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल हो तो वो तो आनी मैजिस्ट्रेट के पास है, लेकिन अगर सेशन ट्रायल भी हो तो ये जो 173 की रिपोर्ट है ये कभी भी सेशन कोर्ट में डायरेक्ट फाइल नहीं होती. दैट इज ऑलवेज सबमिटेड बिफोर द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट की कोर्ट जो है वो फिर अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 193 ऑफ सीआरपीसी ये जो रिपोर्ट है ये सेंड अप करते हैं टू द कोर्ट ऑफ सेशंस, और फिर सेशन जज साहब या अपने पास वो केस रखते हैं या किसी एडिशनल सेशन जज साहब को इंटरेस्ट कर देते हैं. वहां से फिर इंक्वायरी फेज का आगाज होता है. जो भी ट्रायल कोर्ट है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रायल, जो भी ट्रायल कोर्ट है वो देखती है कि किस एक्यूज को समन किया जाना जरूरी है व्हाइल इशूइंग द प्रोसेस. जिसके खिलाफ केस प्रोसीडेबल हो प्राइमा फेशी, तो कोर्ट उसकी हद तक प्रोसेस इशू करती है अंडर सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी. ये जो प्रोसेस इशू होता है
इससे लेके फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तक का जो फेज है, दिस इज कॉल्ड इंक्वायरी फेज। इसमें इंक्वायरी फेज में 2-3 चीजें कोर्ट देखती है, ट्रायल कोर्ट। नंबर 1 प्रोसेस किस हद तक इशू होना है, और नंबर 2 जो है चार्ज किस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत फ्रेम होना है। तो ये जो फेज है FIA में, अगर पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी हद तक कोई प्रोसिक्यूशन है तो पहले इंक्वायरी होती है अंडर फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन रूल्स 2002 के मुताबिक। बट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं आप कॉम्प्लिकेट नहीं करता फॉर यू सिंस यू आर न्यू एंट्रेंस, तो आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल प्रोसीजर विच इज प्रोवाइडेड इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये 2 चीजें इंक्वायरी फेज में ट्रायल कोर्ट देखती है। फर्स्टली दैट अगेंस्ट whom process is to be issued and under which provision of law charge is to be framed against the accused. अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इशुएंस ऑफ प्रोसेस के बाद और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है that is to be supplied to the accused free of cost, which includes statements under section 161 और 164 of CRPC, फर्स्ट इंस्पेक्शन नोट, 173 की रिपोर्ट और जितने डॉक्यूमेंट उसमें प्रोवाइडेड है उनकी कॉपीज जो हैं अटेस्ट, वो एक्यूज को अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस है तो जजमेंट्स इसमें तो नहीं प्रोवाइडेड, लेकिन जजमेंट्स हैं एपेक्स कोर्ट की कि जो मटेरियल है अगेंस्ट द एक्यूज दैट इज टू बी प्रोवाइडेड टू द एक्यूज। तो उसमें बहुत सारी जजमेंट्स, क्योंकि आर्टिकल 10A के बाद फेयर ट्रायल जो है वो दैट इज राइट ऑफ द एक्यूज, फंडामेंटल राइट है, तो उसमें जितना इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है इट इज टू बी गिवन टू द एक्यूज बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ताकि एक्यूज अपने आप को एक्विप कर ले टू फॉर हिज डिफेंस। और इन दी लाइट ऑफ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, क्योंकि जब चार्ज फ्रेम होता है तो उसमें साथ ही एक्यूज की एक प्ली भी रिकॉर्ड होती है, उससे पूछा जाता है कि इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, कोई तुम्हारा प्ली कुछ ऐसी है, तो वो एक्यूज जो है वो अपनी प्ली, जब तक उसको ये पता नहीं होगा कि विच काइंड ऑफ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल एंड व्हाट सब्सटेंस इज अगेंस्ट हिम, तो वो अपना डिफेंस या वो प्ली जो है वो उसका कैपेबल नहीं होता। तो 265C की कंप्लायंस के बाद चार्ज फ्रेम होता है, और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के मुताबिक जो है ये कोई मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है। जो सेक्शंस ऑफ लॉ आईओ ने या पुलिस वालों ने लेबल किए हैं, ट्रायल कोर्ट बाउंड नहीं है कि उन्हीं सेक्शंस में चार्ज फ्रेम करे। ट्रायल कोर्ट चाहे तो ट्रायल कोर्ट ने स्कैन करना है रिकॉर्ड, और इन दी लाइट ऑफ दैट रिकॉर्ड जो ऑफेंस मेड आउट होता है प्राइमा फेशी, जिसमें प्रोसीडेबल मटेरियल मौजूद है, तो उन सेक्शंस ऑफ लॉ में ट्रायल कोर्ट जो है वो चार्ज फ्रेम करती है। ट्रायल कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन और बाय द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। उसको यानी उसमें जो मटेरियल तो वही देखना है ट्रायल कोर्ट ने, क्योंकि बाउंड क्यों नहीं है ये भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC देयर आर 3 मोड्स ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस। 1 है उन पुलिस रिपोर्ट, 2nd है इंफॉर्मेशन कंप्लेंट फाइल्ड बाय एनी पर्सन, और 3rd है कोर्ट बाय इट्स ओन, यानी कोर्ट को भी किसी जुर्म की इत्तला मिली तो कोर्ट बाय इट्स ओन भी कॉग्निजेंस ले सकती है। और इस तमाम चीजों के पीछे मंशा एक ही है कि क्राइम शुड नॉट गो अनपनिश्ड। Somehow after compliance of section 265C of CRPC, charge is framed against the accused. अब आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज प्रोसिक्यूशन को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो एविडेंस पेश करें, और उसमें जो बहुत वास्ट प्रोविजन ऑफ लॉ है दैट इज सेक्शन 265F of CRPC. All witnesses who are acquainted with the facts, court shall ascertain from the public prosecutor और complaint की सूरत में from the complainant names of any person who are acquainted with the facts of the case तो वो जिनका नाम complaint की सूरत में या public prosecutor state case की सूरत में कोर्ट को बताएगा, court shall summon those persons as a witnesses. तो full opportunity adduce की जाएगी to the prosecution to produce the evidence of their own choice, लेकिन उसमें
اگر ٹرائل کورٹ یہ سمجھے کہ یہ جو ایویڈنس ہے دیٹ از ویکسیشیس، یعنی اس میں ایویڈنس فلاں جو بندے کی ہے جس کو پیش کرنے کا مقصد جو ہے ٹرائل کو ڈیلے کرنا ہے، تو کورٹ ریفیوز کر سکتی ہے ٹو سمن دیٹ پرسن ایز اے وٹنس. تو دیز آر ڈسکریشنری پاورز آف دی کورٹ، لیکن وہ ڈسکریشنری پاورز جو ہیں دوز آر لمیٹڈ. دوز ایکسیپشنز آر آلسو پرووائڈیڈ ان سیکشن 265F آف کوڈ آف کرمنل پروسیجر. جب پروسیکیوشن کی ایویڈنس کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس کلوز کرتی ہے، تو دین جتنا بھی انکریمینیٹنگ میٹیریل ایکیوز کی حد تک آتا ہے دیٹ از پٹ ٹو دی ایکیوزڈ انڈر سیکشن 342 آف CRPC، تاکہ ایکیوز کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ریکارڈ پہ آ جائے. وہ پلی آف ایکیوز ہوتی ہے. اس میں اگر ایکیوز یہ کہہ دے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو وہ کنفیشن کے زمرے میں نہیں آتا، وہ پلی آف ایکیوز ہوگا. سم ہاؤ پلی آف ایکیوز لینے کے بعد اسی 342 میں ایکیوز سے پوچھا جاتا ہے کہ whether you will appear in support of your case under section 340 subsection 2، یعنی ایکیوز اپنے ہی کیس میں اپنی حد تک ایز اے وٹنس پیش ہو سکتا ہے 340(2) CRPC میں. then his statement will be recorded on oath، اور جو پروسیکیوشن یا کمپلیننٹ سائڈ ہے وہ اس کو کراس ایگزامن کریں گے اس صورت میں، کیونکہ اب یہاں پہ ایکیوز کا جو اسٹیٹس ہے وہ ہو گیا ہے وٹنس کا. سیکنڈ، ایکیوز کو ایک اور کوشچن جو بہت نیسیسری ہے وہ پوچھا جائے گا کہ اگر وہ خود تو اپنے ڈیفنس میں پیش نہیں ہونا چاہتا تو کیا وہ کوئی اور ڈیفنس ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہے. تو ایکیوز میں آپٹ ٹو پروڈیوس اینی ایویڈنس ان سپورٹ آف ہز کنٹینشن، چاہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو چاہے وہ وربل ایویڈنس ہو کسی کی. تو ایکیوز از ہیونگ اے چوائس. پھر ایکیوز اگر اپنا ڈیفنس جو ہے وہ پیش کرتا ہے تو پھر ایکیوز اس اپنی ایویڈنس کو کلوز کرے گا، اور جو فائنل آرگومنٹس ہیں پھر اوپن جو کیس کرے گا وہ ایکیوز کرے گا اگر اس نے ڈیفنس میں ایویڈنس دی ہے. ڈاکومنٹری ایویڈنس کی صورت میں نہیں، اگر وربل ایویڈنس ایکیوز نے دی ہے تو ایکیوز ول اوپن دی کیس، اور جو پروسیکیوشن ہے دے ول رسپونڈ. اور اگر ایکیوز نے ڈیفنس ایویڈنس پیش نہیں کی تو پھر پروسیکیوشن ول اوپن دی کیس، اور ایکیوز جو ہے وہ اس کا رسپونڈ کرے گا، اس کا رپلائی دے گا، اور اس کے بعد فائنل ججمنٹ پاس ہوگی. جو ججمنٹ ہے انڈر سیکشن 266 آف CRPC جو کورٹ نے پاس کرنی ہے، اس میں اگر وہ ججمنٹ آف کنوکشن ہے تو ایکیوز کو کہا جائے گا کہ وہ اپیئر ہو بفور دی کورٹ. اگر اس کی ایویڈنس ایگزمپٹڈ ہے تو اس کے پلیڈر کو کہا جائے گا کہ ٹو اپیئر بفور دی کورٹ. اور اگر ایکیوز اپیئر نہیں ہوتا یا اس کا پلیڈر اپیئر نہیں ہوتا تو وہ جو ججمنٹ ہے وہ اس وجہ سے ایلیگل نہیں ہوگی کہ ایکیوز جو ہے ہی ڈڈ ناٹ اپیئر بفور دی کورٹ، تو وہ ججمنٹ ویلڈ ہوگی. یہ کوئی ایسی ایلیگلٹی نہیں ہے. اگر ججمنٹ آف ایکویٹل ہے تو اس کے لیے ایکیوز کو سمن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان ایبسنس آف ایکیوز ہی کین بی ایکویٹڈ بائی دی ٹرائل کورٹ. تو یہ ایک شارٹ سا میں نے آپ کو سمری دیتی ہے اباؤٹ دی کرمنل ٹرائل. اس میں اگر کوئی امبیگوٹی کوئی ایسا کوشچن ہے. اب باقی دیکھیں جو لا ہے وہ تو دیٹ از سو واسٹ، یہ تو سمندر ہے. ایک ایک پروویژن آف لا کے اوپر گھنٹوں ڈسکشن ہو سکتی ہے، کئی دنوں تک ڈسکشن ہو سکتی ہے. ہر کیس میں آپ جب لا کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک وہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر کیس کے مطابق وہ جو لا ہے وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ آئیڈیا اور ڈفرینٹ میننگ پیش کرتا ہے. تو اس حد تک جہاں پہ جو ہماری ابھی ڈسکشن ہوئی. وعلیکم السلام. از دیر اینی کوشچن یو آر فری ٹو آسک. Is there a time limit on when the accused can produce evidence, or he can produce evidence at any time? That is after 342. In 342 of CRPC, accused is given option to produce evidence in his defense. تو اگر وہ ڈیفنس ایویڈنس ایکیوز پیش کرے گا تو وہ 342 کے بعد ہی پیش کرے گا. اور اس میں بھی
कोर्ट shall summon that person as a witness. लेकिन अगर कोर्ट ये समझे कि that is vexatious और इसका पर्पस जो है that is to defeat the ends of justice or to delay the trial, तो court may refuse to summon any person as a defense witness as well. Does it have to be at the same time that the prosecution produces its evidence, or can it be later on? No, it is later on after statement under section 342 of CRPC. I have already stated and told that after framing of charge, first opportunity is given to the prosecution to produce the evidence. After closure of their evidence, then statement under section 342 of CRPC is recorded, and in 342 option is given to the accused to produce the evidence if he wants or opts to. And this is the stage when accused may or may not produce his evidence. 342 के बाद. Yeah. सर जो मुचलका होता है, जो श्योरिटी बॉन्ड होता है, उस पे सर जो गवाह के अंगूठे भी लगते हैं, उनका साइन भी होता है. इन केस सर अक्यूज्ड एब्सकॉन्ड कर जाए तो क्या कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उन गवाहों को जो है समन करके लिया? देखें, वो दैट प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 514 ऑफ सीआरपीसी. वो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो श्योरिटी के अगेंस्ट होती हैं. यानी वो श्योरिटी उन गवाहों का यानी वो नहीं ट्राई नहीं विटनेसेस जो हैं वो अगर वो श्योरिटी के कि नहीं मैं तो ये बता ही नहीं था, मैंने तो ये श्योरिटी नहीं दी, वो दो विटनेसेस हैव टू आइडेंटिफाई द श्योरिटी, दैट्स ऑल. अगर श्योरिटी जेन्युइन पर्सन है तो वो विटनेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. लेकिन अगर वो श्योरिटी जिसका नाम लिखा हुआ है वो कहे कि आई एम नॉट ए श्योरिटी, आई नेवर अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, देन विटनेसेस विल बिकम रिस्पॉन्सिबल हु आइडेंटिफाइड हिम एज ए श्योरिटी. तो उस सूरत में विटनेसेस आर रिस्पॉन्सिबल. लेकिन अदरवाइज इट इज दीज आर द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द श्योरिटी. और वो भी श्योरिटी को नोटिस होता है, श्योरिटी बॉन्ड फोरफीट होते हैं, और आफ्टर नोटिस जो है उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं. कोर्ट कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने का सिर्फ एक मतलब है कि ही इज ए सॉल्वेंट, ही इज नॉट इंसॉल्वेंट. इसका पर्पस सिर्फ ये है. लेकिन उसकी जो अमाउंट कन्फिस्केट होती है वो फ्रॉम मूवेबल प्रॉपर्टी होती है. और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की प्राइस इतनी सफिशिएंट नहीं है उसकी, तो फिर जो है ही सेंट टू जुडिशियल लॉकअप फॉर सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 6 months. ठीक है सर. एक और सवाल है, जिस तरह वेस्टर्न जुरिस्डिक्शन में मल्टीपल काउंट्स पे जिस तरह चार्ज फ्रेम होता है, सेकंड डिग्री मैनस्लॉटर होता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, और भी चीज हो सकती है, हमारी अपनी जुरिस्डिक्शन में क्या एक ही चार्ज एक दफा फ्रेम होता है या मल्टीपल? यानी देखिए हमारे यहाँ भी हर ऑफेंस की जो है वो डिफाइन किया गया है. और अगर एक हायर ऑफेंस में, फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल आउट एग्जांपल देता हूँ, 302 में चार्ज फ्रेम हुआ, लेकिन ड्यूरिंग ट्रायल प्रूफ जो हुआ वो 337 या 324 प्रूफ हुआ, तो कोर्ट उसमें विदाउट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फॉर लेसर ऑफेंस उसको सजा दे सकती है एक्यूज को, लेकिन उससे ज्यादा हीनियस ऑफेंस में नहीं दे सकती. यानी 337 का चार्ज है तो 324 में कोर्ट सेंटेंस नहीं अबॉर्ट कर सकती. 337 का चार्ज है तो 302 में कोर्ट जो है कन्विक्शन नहीं अबॉर्ट कर सकती. लेकिन इसमें भी बहुत सारी एक्सेप्शंस है. फॉर एग्जांपल चार्ज 324 का है तो कोर्ट जो है उससे रिलेटेड जो लेसर ऑफेंस है उसमें तो पनिश कर सकती है, लेकिन एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस में पनिश नहीं कर सकती. डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज का होना जरूरी है अगेंस्ट द एक्यूज्ड. तो ये 173 की रिपोर्ट किस टाइम पे आएगी? इधर ये 164 के बयान के बाद भी आ सकती है या पहले ही आना चाहिए? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है. वे जो 173 में टाइम प्रोवाइडेड है वो 14 डेज का है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, और उन 14 डेज में फर्दर 3 डेज टाइम दिया जाता है, यानी 17 डेज टाइम है जिसमें इंटरम रिपोर्ट जो है वो आनी जरूरी होती है एज पर. जी सर, आइडेंटिफिकेशन परेड होती है जब क्रिमिनल ऑफेंस में, तो वो उसकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है. अगर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करता है कोई किसी को क्रिमिनल, तो बाद में वो एक्यूज साबित नहीं होता कि मुजरिम है, तो वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है. मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, मजिस्ट्रेट इज बाउंड टू मेंशन इट ऑन द डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू व्हिच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन.
اس میں دیکھیں جو فار ایگزامپل ایکیوز کوئی آبجیکشن دیتا ہے تو وہ آبجیکشن پارٹ آف ریکارڈ ہوتا ہے. پھر سیکنڈلی جو وٹنس ہے وہ تو مینشن کرنا اس کے لیے ضروری ہے اگر ایک سے زیادہ ملزمان ہیں اور ان کا ڈسٹنکٹ رول ہے تو دیٹ از کالڈ آئیڈینٹیفکیشن ود ریفرنس ٹو رول آف دی ایکیوز. کہ یہ جو ایکیوز تھا فار ایگزامپل ایف آئی آر میں اس نے کہا کہ یہ 3 آدمی تھے جن تینوں کے حلیے فلاں فلاں ہیں اور تینوں نے ایک نے شلوار قمیض پہنی تھی, ایک نے شارٹس پہنی تھی, ایک نے پینٹ شرٹ پہنی تھی اور ایک کے پاس 30 بور پسٹل تھا, ایک کے پاس 12 بور گن تھی, ایک کے پاس کلشن کوپ تھی, ایک نے فائر کیا جو کہ فلاں جگہ لگا, دوسرے نے پیسے چھینے, تیسرے نے جو ہے یرغمال بنایا. تو وہ پھر آئیڈینٹیفائی یہ نہیں کرے گا کہ یہ میرا ملزم ہے اس سے, کیونکہ کلیئر نہیں ہوتا کہ وچ کائنڈ آف رول واز پلیڈ بائی دی ایکیوز. تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن ود ریفرنس ٹو رول ہوگی کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس گن تھی اور اس نے یرغمال بنایا اور اس نے فلاں اس نے گولی ماری ہے, اس کے پاس کلشن کوپ تھی, اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی. تو یہ وہ اس کو ود ریفرنس ٹو رول اس نے کرنا ہوگا. اور میجسٹریٹ جو ہے یہ کوئی پریویلیج کمیونیکیشن نہیں ہے, میجسٹریٹ صاحب جو بھی ہوں گے وہ اس کو پارٹ آف ریکارڈ بنائیں. سر اگر وہ اس کو غلط آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کسی وجہ سے بھی, بعد میں بندہ کوئٹ ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف وہ سو کر سکتا ہے. ہاں سو تو کر سکتا ہے بالکل. ہاں ٹارٹ میں وہ بالکل میلیشیس پروسیکیوشن میں وہ اس کو سو کر سکتا ہے. جی ہر کسی کیس میں اگر 4 ایکیوز ہوں, 3 ایبسکانڈر ہوں اور ایک کی ڈیتھ کسٹڈی میں ہو جائے, پھر اس کیس کو کیسے چلایا گیا؟ دیکھیے وہ جو ایبسکانڈر ہوگا جو جس کی ڈیتھ ہو جائے گی اس کی حد تک تو پروسیڈنگز ابیٹ ہو جائیں گی اور جو ایبسکانڈر ہیں ان کی حد تک 512 CRPC میں جو ایویڈنس ہے وہ سیکیور ہو جائے گی. جب وہ پیش ہوں گے تو وہ جو 512 CRPC کی ایویڈنس ہے وہ ساری ان کے خلاف دوبارہ پیش ہوگی. سیکیور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان وٹنسز میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو 512 والا جو اس کا اسٹیٹمنٹ ہوگا وداؤٹ کراس ایگزامینیشن وہ منوان اس کے حد تک پڑھا جائے گا. اور ان کی پراپرٹی جو ہے وہ اٹیچ ہوگی. جی 87 کے بعد 88 کا پروسیجر یہی ہوگا. جو ایبسکانڈر ہیں پروکلیمڈ اوفینڈر ہیں, اب وہ ایبسکانڈر نہیں رہے, ناؤ دے آر ول بی ٹرمڈ ایز اے پروکلیمڈ اوفینڈر, تو ان کی پراپرٹی بھی اٹیچ ہوگی انڈر سیکشن 88 آف CRPC. تو اسٹیٹمنٹ آف کے بارے میں تھا سر, اگر وہ اسٹیٹمنٹ آف نے اپنی فیور میں کر دیتا تو اس کی کراس ایگزامینیشن بھی ہو جاتی ہے, تو اس کی سر کیا ویلیو ہوگی؟ اس کی وہی ویلیو ہے جو کہ کسی بھی وٹنس کی ویلیو ہوتی ہے. اس میں کورٹ اس کی انٹرنسک ویلیو دیکھے گی آن دی ٹچ اسٹون آف انٹائر میٹیریل, اس کو جکسٹا پوزیشن میں دیکھے گی ود دی ایویڈنس آف پروسیکیوشن. اس کی کوئی لیسر ویلیو نہیں ہے, اس کی بھی اتنی ایز پر لا ویلیو ہے جو کہ پروسیکیوشن وٹنسز کی ہے. سر یہ ڈسچارج جو ریلیز میں کیا طریقے جس طرح سیکشن 63 اور 169 میں جو ڈسکس کھڑے ہو کے اس کوشچن کے میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں. جی سر یہ ڈسچارج جو یہ ریلیز میں کیا طریقے جس طرح CRPC سیکشن 63 اور 169 میں جو استعمال ہوا ہے. ہاں یہ جو ڈسچارج ہے یہ ایکویٹل نہیں ہے. اگر اس ٹائم ایویڈنس ڈیفیشنٹ ہے تو کنسرن کورٹ آف ایریا میجسٹریٹ یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر 169 میں اور کورٹ جو ہے وہ سیکشن 3 میں ڈسچارج کر سکتا ہے ایکیوز کو. ٹرائل کورٹ بھی بیفور فریمنگ آف چارج 265D میں اگر آرڈر پاس کرے گی کہ اس وقت تک اس کے خلاف سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے ٹو فریم اے چارج تو ایکیوز کین بی ڈسچارج. تو وہ جو ڈسچارج ایکیوزڈ ہے وہ کیونکہ ایکویٹل نہیں ہے, سبسیکوینٹلی اگر اس کی حد تک کوئی میٹیریل آتا ہے تو ہی کین بی سمنڈ بائی دی کورٹ ٹو فیس دی ٹرائل. ایکویٹل کی صورت میں تو دوبارہ اس کو سمن اس کیس میں نہیں دیا جا سکتا until and unless that ایکویٹل آرڈر از upset by the superior courts. لیکن ڈسچارج ایکیوز جو ہے وہ صرف ٹیمپریری ریلیز ہے from the bond, he can be summoned later on by the same court. سر یہ ہم 265 کے لگاتے ہیں 561 کے ساتھ 561A کے ساتھ, تو سر اگر ایکویٹل ہو جائے یا کواشمنٹ ہو جائے تو مطلب دونوں میں ڈفرنس کیا ہوگا؟ ایک بندہ اگر ایکویٹ ہو گیا تو اس کا ریکارڈ بھی ختم ہو جائے گا یا کواشمنٹ سے ہی ریکارڈ؟ نہیں, دونوں صورتوں میں وہ ریکارڈ تو ختم ہو گیا نا اس کی حد تک. آپ دو چیزیں مکس کر رہے ہیں. 265 کے 561A کے ساتھ نہیں لگتی. 561A are inherent parts of the High Court to prevent the abuse of process of law.
265K is a power of trial court to acquit the accused at any stage of the trial or proceedings. यानी after submission of 173 report at any stage, court अगर समझती है कि there is no substance against the accused which may lead towards his conviction, तो he can be acquitted. तो जो quashment की powers हैं वो दो grounds हैं before the High Court. Number one, accept the allegations leveled in the FIR and no criminality is spelling out, though that contents of the FIR does not disclose any offence. तो वो है. एंड सेकंड है jurisdictional defect के ऊपर कि if there is any jurisdictional defect तो तब भी FIR quash होती है. Acquittal 265K की different grounds हैं, उसमें possibility of conviction देखी जाती है. सूरत में जो कोर्ट है वो foresee करती है future कि ये मटेरियल है अगेंस्ट द एक्यूज, इसको पार्ट ऑफ रिकॉर्ड अगर बनाया जाए तो तब भी देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन. सर लेकिन उसका रिकॉर्ड तो थाने में रहता है सर. नहीं, वो तो एफआईआर देखिए ना, थाने में अगर क्वाशमेंट होगी तो तब भी उस सूरत में भी रिकॉर्ड तो एफआईआर है ना. एफआईआर कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी पर्सन. उसके साथ जब कन्विक्शन आ जाएगी तो वो फिर रिकॉर्ड होल्डर होगा. अगर एक्विटल हो गई है तो फिर तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा. वो तो एफआईआर तो खैर 100 साल तक तो रहती है ना, वो डॉक्यूमेंट रहता है, लेकिन उसके साथ फिर आ जाता है कि इसमें ये एक्विट हो गया है, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड. सर सेक्शन 172 की रिपोर्ट आ गई, पुलिस अपनी तरफ से रिपोर्ट फाइनल कर देती है, इंक्वायरी स्टार्ट होती है, देन ट्रायल स्टार्ट होता है. लेकिन जब एक सिनेरियो में सर दो क्वेश्चन मेरे पास. पहले सिनेरियो में पुलिस को लगता है कि और इसमें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और उसके पास कोई नया एविडेंस आता है, देन एक अलग 173 का कंप्लीट चलान आएगा. अगर सेकंड क्वेश्चन, अगर 173 के रिपोर्ट में लैप्सेस रह जाएं ऑन द साइड ऑफ एक्यूज, मतलब उसने एविडेंस सॉरी कंप्लेनेंट साइड था, उसने एविडेंस इन्वेस्टिगेशन उसने कंप्लीट भी किया, हम 22A में जाते हैं या सारे, फिर भी एक रिपोर्ट आ जाती 173, उसके बाद भी सर हमें क्या उसकी कंप्लेंट. देखिए, मैंने जब 173 को मैंने डिस्कस किया था तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये कोई हतमी रिपोर्ट नहीं होती. इवन वर्ड कंप्लीट भी लिखा हो तो तब भी सिंस इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग प्रोसेस, तो ये सप्लीमेंट्री सब्सिक्वेंट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC कैन बी सबमिटेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और देयर में बी मेनी रीजंस ऑफ दैट. नया मटेरियल आएगा तो नई रिपोर्ट आ सकती है, उसमें कोई ऐसा एम्बार्गो नहीं है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जी जी, किसी स्टेज पे. सर ये जो हैप्चुअल ऑफेंडर होते हैं जैसे 498 के केसेस होते हैं, इसमें एक केस का एविडेंस दूसरे केस में इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, उसकी कन्विक्शन जो है अगर पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बनी है, वो एक क्वेश्चन उससे पुट होगा तो उसको बिल्कुल यूज किया जा सकता है अगर वो प्रीवियसली कन्विक्ट है तो. वैसे अगर उसका ट्रायल चल रहा है तो उसमें हाँ नहीं, वो तो फिर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज इन फेवर ऑफ एक्यूज, तो वो उसकी हद तक. सर एक क्वेश्चन और था, मुझे 496 का 498 सेक्शन है ना, क्या इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है. 496 और 498 ऑफ CRPC, ये मेरे ख्याल से पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ये जो सेक्शंस हैं, ये 494 तो उसी से डील करता है. मैं अभी आपको बता देता हूँ. देखिए 494 जो है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की पार्ट से डील करता है. ये है चैप्टर नंबर 38, इफेक्ट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन. सर 496 और 498. अच्छा, ये तो बेल है. 496 डील्स विद बेलेबल ऑफेंसेस. 498 से जो जज मेड लॉ है जो डेवलप हुआ हदायतुल्लाह शाह वर्सेस क्राउन PLT 1947 से, वो एक कॉन्सेप्ट दिया गया प्री अरेस्ट बेल का कि जो एक्यूज, ये जरूरी एक इनोसेंट है जो कि मेलिशियसली इम्प्लीकेट हो गया, पुलिस ने कर दिया, प्रोसिक्यूशन ने कर दिया, तो क्या उसके पास कोई राइट नहीं है कि बगैर गिरफ्तार हुए वो रिलीज हो जाए? क्योंकि 497 में तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीज ऑन बेल आफ्टर अरेस्ट. तो लेकिन अगर इनोसेंट है
तो वो भी उसका जेल में जाना जरूरी है या उसका हैंडकफ्स में पुलिस कस्टडी में जाना जरूरी है? तो फिर वो राइट ऑफ लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जजमेंट लॉ आया 498 रेड विद सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें प्री अरेस्ट बेल की पास दी गई सेशंस कोर्ट को। सेशंस के पास भी ये पास हैं, हाई कोर्ट के पास भी ये पास हैं, और उसके बाद जो है ज़ाहिर अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास भी। तो ये बिफोर अरेस्ट का कॉन्सेप्ट है इन 498 रेड विद 497 ऑफ सीआरपीसी। जो 496 सीआरपीसी है, इट डील्स विद बेलेबल ऑफेंसेस। जब भी कोई बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज पकड़ा जाएगा तो पुलिस ऑफिसर उसको थाने में भी छोड़ सकता है, लेकिन whenever he is presented before the court of magistrate, तो he shall be released on bail. उसने उसी वक्त रिलीज होना है, श्योरिटी बॉन्ड्स का ऑर्डर पास होना है फॉर हिज रिलीज। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 496। सेक्शन 498 ए में है कि जो प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी है। वो उसमें एक क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का होना बेल बिफोर अरेस्ट के लिए जरूरी है, लेकिन एक बंदा का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन वो हैप्चुअल ऑफेंडर है और इलाके में जैसे होता है इसका नाम है कि ये चोरियां डकैतियां ऐसे ऑफेंस करता है, तो क्या वो भी करा सकते हैं बेल बिफोर? देखें, आप दो चीजें कंफ्यूज करते हैं। नाम होना जरूरी नहीं है, किसी आदमी के अगेंस्ट एफआईआर का होना जरूरी है। अगर एफआईआर लॉन्च होगी, उसका नाम नहीं है, लेकिन सब्सिक्वेंटली ही इज इम्प्लीकेटेड इन द केस, तो अब उसके खिलाफ एफआईआर है, तो वो प्रीवियस बेल कोई भी करवा सकता है। कंफर्म होना ना होना दैट इज ऑलटुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन। इट विल बी सीन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस के अब तो खैर मेलाफाइड से आगे कोर्ट्स चली गई हैं। एलिमेंट ऑफ फर्दर इंक्वायरी इज ऑलवेज सीन एट द टाइम ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ बेल के वो स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस क्या है जिसकी वजह से पुलिस इसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो मेन कंसिडरेशन रही हैं कोर्ट की फॉर कंफर्मेशन ऑफ बेल बिफोर अरेस्ट, वो एलिमेंट ऑफ मेलाफाइड है ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। 498 ये कहता है कि एट द टाइम देयर शुड बी एफआईआर, और एक्यूज की जो प्रेजेंस है वो एट द टाइम ऑफ बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। उसके एब्सेंस में ये नहीं है कि एक्यूज घर बैठा हुआ है और काउंसिल फाइल करेगा और वो जो है इंटरम बेल हो जाएगी। उसके लिए एक्यूज का अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट जो है वो मैंडेटरी। एफआईआर से लेकर कन्विक्शन तक प्रैक्टिकली कितना टाइम लगता है और दर्ज कितना है और लगता कितना? देखिए, जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक जो कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल केसेस का, वो डे टू डे ट्रायल का कॉन्सेप्ट है। प्रोलॉन्ग्ड जो ट्रायल्स होते हैं उनको लॉ हमेशा डेप्रिकेट करता है, लेकिन हमारे यहाँ डिले होती हैं, जल्दी भी ट्रायल। कई ट्रायल्स हैं जो 6-6 दिन में हमने कंप्लीट किए हैं मर्डर केसेस में, और कई ट्रायल्स जो हैं वो साल इसमें कुछ एक्यूज, कोई प्रोसिक्यूशन, विटनेसेस, सबका लेथार्जिक जो एटीट्यूड है वो काउंट करता है। टुगेदर विद दैट जो है वो ट्रायल डिले होते हैं। लेकिन जो लॉ है, लॉ में डे टू डे ट्रायल का कॉन्सेप्ट है। सर, हमारी पुलिस के पास भी जो है कुछ इनहेरेंट पावर्स हैं, जिस तरह इमरान खान के अरेस्ट वारंट्स जो हैं वो यहाँ पे जारी हुए। मेरा सवाल ये है कि पुलिस आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन जाके भी यानी मतलब अक्यूज को अरेस्ट कर सकती है, या कोई प्रोसीजर कानून में बताया गया? सेक्शन 75, सेक्शन 76, सेक्शन 77, सेक्शन 78, 79, ये आप सारे पढ़िए। एक तो वारंट जो इम्प्लीमेंट होता है, जो वो इशू होता है, वो पूरे मुल्क में कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन जब आउटसाइड जुरिस्डिक्शन का वारंट होगा तो उसके दो तरीके हैं। एक, जिस शख्स को कोर्ट चाहे तो यहाँ के किसी पुलिस ऑफिसर को इंट्रस्ट कर सकती है वो वारंट, और अगर इधर के पुलिस ऑफिसर को इंटरेस्ट होगा वो वारंट, तो वो पुलिस वाला जाएगा कंसर्न जिस भी एरिया में, उस थाने में उसको जो है वो रजिस्टर करेगा अपने आमद जो है, उस वारंट की इंडोर्समेंट होगी और उसकी वहां की पुलिस उसको एकम्पनी करेगी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट। दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ की कोर्ट डायरेक्टली वहां के कोर्ट को या वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी ये इंटरेस्ट कर सकती है कि ये वारंट जो है ये आप एग्जीक्यूट करके बंदा मेरे सामने पेश करें। तो वो दोनों सूरतें जो हैं हो सकती हैं। ये अक्सर थेफ्ट की केसेस में पुलिस रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाती,
जब कोर्ट के थ्रू हम रिपोर्ट मांगते हैं पुलिस से तो वो कहते हैं कि FIR अदम पता हो चुकी है, तो ये एक नई टर्म मेरे लिए, मुझे इसका पता नहीं है, इसके पीछे कोई लॉ मौजूद है या पुलिस? देखिए, अदम पता का दो चीजें आती हैं। एक तो जो कंप्लेनेंट है वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR वो डिसअपीयर हो जाता है और वो पुलिस के सामने आता ही नहीं और नेसेसरी जो डिटेल्स हैं वो नहीं देता। लेकिन ये अदम पता वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कोई इतना मकबूल कॉन्सेप्ट नहीं है। व्हेनेवर FIR इज लॉन्च्ड तो जो भी सिचुएशन है, कंप्लेनेंट आ रहा है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, इंटरम रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाटएवर इट इज, वो जो रिपोर्ट है चाहे उसमें कुछ भी नहीं है, यानी कोई भी उसके बाद कंप्लेनेंट ने नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, एक्यूज के मुतल्लिक उन्हें पता नहीं चला, कंप्लेनेंट भी एरिया छोड़ के भाग गया, ये भी क्लियर नहीं है कि क्या क्या उसके घर से चोरी हुआ था, मजीद उसने कोऑपरेट नहीं किया, घर छोड़ के किसी और को पोजेशन घर का दे दिया, खुद टेनेंट था और कहीं और चला गया और कोई पता नहीं है, तो ये भी सारी रिपोर्ट जो है ये कोर्ट को उसने 173 की रिपोर्ट में सबमिट करनी है, इंटरम रिपोर्ट में, कि ये FIR लॉन्च हुई। मैं पहले ही दिन जब मौके पे गया तो आफ्टर लॉजिंग ऑफ द FIR कंप्लेनेंट घर छोड़ के जा चुका था। अगले दिन गया तो पता चला कि उस घर का पोजेशन जो है वो नए टेनेंट्स आ गए हैं, कंप्लेनेंट का अपना नंबर बंद है, वी आर अनएबल टू प्रोसीड, तो वही रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो सकती है। और सर इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर एक डिटेल्ड मैकेनिज्म या मोड मौजूद है लॉ में? जी, पुलिस रूल्स में मौजूद है, लेकिन अभी तो देखिए ना, इन्वेस्टिगेशन कोई प्रोसेस का नाम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो है, एक मैंने जैसे पहले बात की, इसका मकसद है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब किस केस में कलेक्शन ऑफ एविडेंस की क्या नेचर हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी केस। कुछ चीजें हैं जो कि अगर साइबर क्राइम है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट होगी, अगर चोरी का केस है तो उसका रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, मर्डर है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो हर केस के नेचर के मुताबिक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वो मोड अडॉप्ट करना है कि उसने, ये उसकी विल है कि किस तरीके से उसने एडमिसिबल एविडेंस कलेक्ट करनी है, which is to be presented before the court of law. इन्वेस्टिगेशन सर कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन कोई पुलिस की एक्सेस हो तो जस्टिस ऑफ पीस जो है कैन इंटरफेयर इन केस ऑफ एनी एक्सेस ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस। लेकिन कोई कोर्ट ऑफ लॉ IO को ये नहीं कह सकती कि तुम इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो। इन्वेस्टिगेशन फेज जो है दैट इज आउटस्टेड फ्रॉम द डोमेन एंड परव्यू ऑफ द कोर्ट्स। सर, अगर कोई एक्यूज 340 सबसेक्शन 2 में अपने फेवर में स्टेटमेंट देना चाहते हैं, मतलब एविडेंस जो है ना प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो सर इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी सर? वो पहले एक दोस्त ने ये क्वेश्चन किया था, वही वैल्यू होगी जो कि प्रोसिक्यूशन की एविडेंस की होती है। ये नहीं होगा कि जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस प्रोड्यूस की है वो आला एविडेंस है और जो डिफेंस कर रहा है प्रोड्यूस वो अदना एविडेंस है, ऐसा नहीं होगा। उसकी स्ट्रेंथ देखी जाएगी और कोर्ट जेक्स्टा पोजीशन में दोनों एविडेंस को सामने रख के तो फिर जी सर, एक एक्यूज्ड है वो बेल पर है और वो अपीयर नहीं होता बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, वो नॉन प्रोसिक्यूशन हो जाता है, तो अरेस्ट के बाद ये दोबारा बेल दायर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप प्री रेस्ट में गायब हो गया या नहीं बेल, जो भी सिचुएशन है, तो आफ्टर रेस्ट इट सेल्फ प्रोवाइड विद फ्रेश ग्राउंड। ये वही दो ही सिचुएशन है ना, एक तो पेश नहीं हुआ, इश्तिहारी हो गया, दूसरा प्री रेस्ट बेल फाइल की एंड ही फ्लेड अवे फ्रॉम द कोर्ट, एंड थर्ड एंड आफ्टर ही वाज कॉट बाय द पुलिस एंड आफ्टर रेस्ट बेल जो है उसके अपना वो है वो देखा जाएगा, उसको बेल हो सकती है। आप सर एक प्रोपोजिशन है, अगर आप जी प्लीज। सर एक एम्प्लॉई है अंडर द प्राइवेट कंपनी, उसकी सैलरी रिटेन करी है उसकी कंपनी वाले ने, और उसने रेजिग्नेशन दे दिया था ऑन टाइम। अब उसने क्या किया है, जवाब में लैपटॉप रिटेन करके रखा है कंपनी का,
Sir, what legal defense he can take to avoid the criminal proceeding या FIR को avoid करने? देखिए उसको जो है सूट फॉर रिकवरी में जाना चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो कि ये इन्होंने मेरी सैलरी देनी है, और साथ वो मेंशन करे कि ये जो लैपटॉप है ये मैंने अपने पास रखा हुआ है और इसकी प्राइस ये है, मेरी सैलरी इतनी है, और अगर वो जो है दो चीजें मांग लेना, या फुल सैलरी मांगे और साथ के कि मैं ये उस सूरत में वापस करूंगा, या ये डिडक्ट करके इसकी अमाउंट और बकाया मुझे रकम दे दीजिए। बट जब वहाँ पे मेंशन करना कि लैपटॉप मेरे पास है तो सर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा? नहीं, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये है कि वो लैपटॉप जो है, जो कंपनी ने उसको अपने इस्तेमाल के लिए उस वक्त दिया था, वो खुद रिटेन करने की बजाय वो किसी को आगे बेच दे, तो दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सर ये सेक्शन प्रोक्लेम ऑफेंडर है सर, अब वो अपील होना चाहता है बिफोर ही वांट्स टू जॉइन ट्रायल, सर वो पहले अपना प्री रेस्ट बेल कराएगा या फिर पहले वो ऑर्डर सस्पेंड कराएगा? नहीं, जब वो प्री रेस्ट बेल कराएगा, व्हेन ही विल अपीयर बिफोर द कोर्ट, तो ऑटोमेटिकली जो उसके वारंट्स हैं वो जो है वो तो खत्म हो जाएंगे। प्री रेस्ट बेल वो ऑर्डर सस्पेंड करने के लिए अलग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्री रेस्ट बेल करवाएगा वो, जब इंटरम बेल का ऑर्डर होगा तो उस इट इम्प्लॉय एवरीथिंग कि उसके अब वारंट नहीं है, कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन दे दी जी। देखिए 497 सब सेक्शन 1 में 2 किस्म के ऑफेंसेस प्रोवाइडेड है। वो ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 7 इयर्स या उससे कम है उसको कहते हैं नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं। जो 7 साल से ज्यादा जिनकी सजा है, 10 साल या उससे ऊपर जिनकी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में ऑफेंसेस फॉल करते हैं। तो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज जो है बाय वर्च्यू ऑफ जजमेंट्स, ये इटसेल्फ सफिशिएंट रीजन है। 497(1) भी कहता है इसमें कि नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में बेल इज ग्रांटेड एज ए रूल और रिफ्यूजल इज एक्सेप्शन। तो इसी तरह जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में ऑफेंसेस फॉल करते हैं, उसमें अगर एलिमेंट ऑफ फर्दर इंक्वायरी नहीं है तो फिर रिफ्यूजल ग्रांट ऑफ बेल इज एक्सेप्शन। उसमें उसका फिर पैरामीटर्स दिए हुए हैं 497(1) में। या फिर फर्दर इंक्वायरी का केस होगा तो तब उस सूरत में उसकी बेल होगी, या फिर वो सिक है, इन्फॉर्म है, या फीमेल एक्यूज्ड है, या वो जुवेनाइल ऑफेंडर है, तो उस सूरत में उसकी फिर बेल। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हैं वो 345 सीआरपीसी में और सेक्शन 338E पाकिस्तान पीनल कोड में वो उनका कॉन्सेप्ट मौजूद है। शेड्यूल है सीआरपीसी का, उस शेड्यूल में ये प्रोवाइडेड है कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल हैं। जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उसमें जो एग्रीव्ड पार्टी है उनके पास ये राइट है। मर्डर की सूरत में लीगल एयर्स ऑफ दी जो डिसीज्ड हैं उनके पास राइट है टू कंपाउंड एन ऑफेंस, और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जो है दैट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट एंड आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्रोमाइज एक्यूज इज एक्विटेड। अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई है जिसमें वो कहते हैं कि जो मेरिट पे एक्विटल है और जो स्टेटस एक्यूज का मेरिट पे एक्विटल की सूरत में है वो आफ्टर कंप्रोमाइज एक्विटल को उस दर्जे पे नहीं रखा जा सकता। काजी फायज ईसा साहब की अभी एक लेटेस्ट जजमेंट है इस क्वेश्चन के ऊपर भी, लेकिन जो इफेक्ट होगा कंप्रोमाइज का वो कंपाउंडिंग की सूरत में, वो सॉरी एक्विटल की सूरत में होगा। सेकंड, जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो मिटिगेशन तो हो सकती है, लेकिन सोलली बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल है एंड कंप्लेनेंट हैज एंटर्ड इनटू कंप्रोमाइज, तो वो सफिशिएंट नहीं है टू अर्न एक्विटल। उसके लिए कुछ और भी चीजें लानी पड़ेंगी जिससे कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन मौजूद नहीं है। प्री बार्गेन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्री बार्गेन का जो कॉन्सेप्ट है ये नैब लॉज में आया था, जिसमें एक्यूज जो है बिफोर इनिशिएशन ऑफ ट्रायल जो है वो ही वॉलंटरीली अपीयर्स कम फॉरवर्ड और वो कहता है कि मैंने जो स्टेट को नुकसान पहुंचाया है वो मैं पूरा करता हूं, और वो एक प्ली बार्गेन होती है जिसमें
नैब अथॉरिटीज और एक्यूज एक सेटलमेंट पे पहुंचते हैं कि ये इतनी अमाउंट अगर ये जमा करवा दे तो देन ही विल अर्न एक्विटल, तो वो फिर उसमें वो पैसे जमा करवाता है। जो कंप्रोमाइज है उसकी तो अपनी टर्म्स होती हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकती है। सर ये भी पॉसिबिलिटी है कि एफआईआर में एक कोई सीरियस क्राइम अलेज किया गया है बट ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन दे ड्रॉप द चार्जेस, सो ऐसा क्या प्रोसिक्यूशन कर सकती है या इट हैज टू स्टे? बिल्कुल, वो तो स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस है जिसके मुताबिक देखा जाएगा कि इसके वो जो एफआईआर में तो सिर्फ एलिगेशन है ना सीरियस ऑफेंस का, लेकिन पता चलता है कि ये एलिगेशन जो है ये दुरुस्त नहीं है, तो डेफिनेटली दैट सेक्शन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इवन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सर ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 से रिलेटेड प्रश्न है, उस एक्ट में ये लिखा गया है कि ये एक्ट सिर्फ उनके लिए बनाया गया है जो हैबिचुअल लैंड ग्रैबर्स हैं। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पहले जो 2007 या उससे पहले जो लॉ था वो यही था कि ये सिर्फ लैंड ग्रैबर्स की हद तक है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई, एपेक्स कोर्ट ने इस पे जो है बहुत सारा केस लॉ डेवलप हो चुका है, एनी पर्सन की हद तक है, whoever dispossess the other person from the property without lawful justification, तो उसके लिए जो है illegal dispossession act can be invoked। बेल बिफोर अरेस्ट मेजॉरिटी टाइम्स कंफर्म नहीं होती, तो इसके पीछे बेसिक साइंस का है कि क्यों मेजॉरिटी ऑफ द टाइम? ये इसलिए कि इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो शख्स रिक्वायर होता है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो केसेस जिसमें रिकवरी इन्वॉल्व हो। अब रिकवरी जो है वो विदाउट अरेस्ट जो है वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एक्यूज फिर उस सूरत में कोऑपरेट नहीं करता, रिकवरी इफेक्ट नहीं करवाता, तो उन केसेस में। और सेकेंडली प्री अरेस्ट बेल जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमिना है जो कि लॉ भी कहता है, तो बहुत एक्सेप्शनल केसेस में प्री अरेस्ट बेल जो है वो ग्रांट होती है। सर एक कॉम्प्रोमाइज अगर डिलीट के अंदर हो रहा है तो यूजुअली जजेस की जजमेंट में लिखा होता है कि कॉम्प्रोमाइज फेयर होना चाहिए, तो कहीं पे मुझे ये नहीं मिल रहा था कि क्या ग्राउंड्स होते हैं एक कॉम्प्रोमाइज़ को रीजनेबल करने के लिए। सो अगर जैसे डीएड के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो जजेस ये कहते हैं कि इसके अंदर माइनर्स के इंटरेस्ट इंटैक्ट नहीं है, आपको माइनर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, बट कहीं पे ये भी कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ फेयर होना चाहिए। तो क्या ग्राउंड्स होते हैं जिनकी वजह से जजेस फेयर करते हैं? देखिए जो बदले सुलह है मर्डर की सूरत में, उसमें जो दियत अमाउंट है उसकी मिनिमम क्वांटिटी जो है वो दैट इज प्रोवाइडेड इन लॉ अंडर सेक्शन 323 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड, जो कि 6,666 ग्राम सिल्वर जो है उसके एक्विवेलेंट है, लेकिन ये मिनिमम अमाउंट है, इससे ज्यादा देयर इज नो लिमिट एट ऑल, इससे डबल ट्रिपल 100 टाइम्स हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन दी, ये पार्टीज का सेटलमेंट है, इससे कम नहीं हो सकती, नंबर 1। सेकेंड, जो असल प्री रिक्विजिट है कॉम्प्रोमाइज का, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर बेस्ड ऑन दी फ्री विल ऑफ ऑल दी पार्टीज। थर्डली, मर्डर की सूरत में ऑल लीगल एयर्स का कॉम्प्रोमाइज होता है, एक भी अगर लीगल एयर जो है वो उस कॉम्प्रोमाइज में नहीं आता तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, तमाम आएंगे फ्री विल के साथ आएंगे और विदाउट प्रेशर जो है, इफ दे विल अपीयर बिफोर द कोर्ट, तो कोर्ट ने यही 2-3 चीजें देखी है तब कोर्ट अलाउ करती है। जो माइनर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात है, तो जो माइनर्स हैं उनके अमाउंट जो है उनके गार्डियन को नहीं दी जा सकती, उनके हद तक जो है सेपरेट अकाउंट ओपन होता है या जो सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं उनके नाम के लिए जाते हैं जो कि उनके नाम पे डिपॉजिट होते हैं, और अगर गार्डियन वो यूज करना चाहे तो उससे गार्डियन कोर्ट से जो है परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद जो है बताना पड़ता है कि हाउ दैट अमाउंट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर। इसमें मेरा पहली क्वेश्चन है कि जो जजमेंट पेपर उसके ऊपर यूजली वेव ऑफ नहीं होती है, बट उस केस में ये वेव ऑफ हो गई थी, तो वहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट थी कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर मेंशन करना वो मिसिंग थी, लीगल के माइनर्स के कोई राइट्स नहीं थे उसको। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखें जो माइनर्स हैं उनको जो अमाउंट मिलेगी वो एज पर देयर शेयर मिलेगी। ये पूरी अमाउंट जो है, अगर जो एडल्ट है वो अपना जो बदले सुलह का राइट है वो वेव कर सकते हैं, लेकिन जो माइनर्स हैं
उनकी हद तक जो दियत का राइट है वो वेव नहीं हो सकता, एडल्ट्स अपना राइट वेव कर सकते हैं, और जो उनका हिस्सा बनेगा माइनर्स का वो उनके अकाउंट में जमा होगा। ये इसके हट से हट के कुछ और प्रोसीजर नहीं है। आई डू नॉट नो विच काइंड ऑफ जजमेंट यू हैव दैट, लेकिन ऐसा मेरी नज़र से कभी भी नहीं गुजरा। सर हम उसके ऊपर काम कर रहे थे तो मुझे से जजमेंट मिल रही थी जिसको प्रूफ भी कर दिया था। सो उसमें मुझे सिर्फ यही एक क्वेश्चन था कि कॉम्प्रोमाइज अगर ये वेव ऑफ हो गई है तो कॉम्प्रोमाइज नहीं, दियत जो है वो वेव ऑफ जो है वो माइनस की हद तक हो ही नहीं सकती। जो मेजर है, जो एडल्ट है, उनकी हद तक वेव ऑफ हो सकती है, माइनस की हद तक नहीं हो सकती। नहीं जा सकती। Any other questions? सर आजकल हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम्स में काफ़ी इजाफा हो रहा है सर, उसकी लेजिस्लेशन जो है वो उसके ऊपर सेपरेट लेजिस्लेशन है या प्रोसीजर जो क्रिमिनल प्रोसीजर है? नहीं, प्रोसीजर तो सीआरपीसी का ही है, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन और उनकी लेजिस्लेशन पहले तो था, उसमें ईटीओ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस था, 2002 था मेरे ख्याल से, तो वो बहुत वेग लॉ था उसके ऊपर। तो अभी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट आया है जो कि बहुत बेहतर लेजिस्लेशन है एज कम्पेयर टू अर्लियर लॉ। उसकी इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है प्राइमरीली, तो उसी के ऊपर जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, ऑफसेट इक्विपमेंट या डिजिटल डिवाइस, तो वो उसके ऊपर बेस करती है ज्यादा एविडेंस। एनी अदर क्वेश्चन? सर 249 में जो स्टॉपेज प्रोसीडिंग होती है तो उसको अगर हमने रिस्टोर करवाना तो वो कौन सा सेक्शन या कौन सी? सिर्फ आप एक एप्लीकेशन देंगे अंडर सेम प्रोविजन ऑफ लॉ कि ये जो प्रोसीडिंग्स थी ये स्टॉप हो गई थी बिकॉज कंप्लेनेंट वाज नॉट नोन, कि वो किधर गया, उसके वेयर अबाउट वर नॉट नोन, नाउ ही इज अवेलेबल, तो इसको रिस्टोर किया जाए तो कोर्ट विल रिस्टोर द प्रोसीडिंग। शाह साहब माशाल्लाह आप बहुत एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिशियल हैं, आप तो फिर कोई ऐसी चीज कुछ? थैंक यू जी, जुम्मा है, आप भी जुम्मा पढ़ें। इट इज़ वेरी नाइस टू सी यू, और इंशाल्लाह आपके लिए दुआ गो है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब हों, अल्लाह को कामयाब करें। थैंक यू।